Good afternoon, class. Yesterday already taught you about the definition and types of glaucoma. The types are open angle glaucoma, closed angle glaucoma, pigmentary glaucoma and normal tension glaucoma. And today we'll continue from the pathophysiology. Due to any etiology like structural abnormalities, any eye disease, eye infection, eye inflammation or long-term use of mydriatic and corticosteroids, these all leads to structural alteration in the aqueous outflow system. This is the drainage system of the eye where the cellular and tissue changes taken place and which leads to functional alteration. In the functional alteration there is increased intraocular pressure or impaired blood flow which create the functional changes and leads to optic nerve damage. Because of the increased intraocular pressure and impaired blood flow to the optic nerve, the optic nerves because of the increased intraocular pressure and impaired blood flow, there is damage of optic nerves. This is the atrophy of the optic nerve, which is characterized by loss of nerve fibers and blood supply of the optic nerves, and that leads to vision loss. Next we will talk about the clinical features. So first clinical features, pain around the eye when coming from the darkness. Second one is colored hollow rings seen around the light bulbs, especially in the morning or at the light. hollow rings का मतलब क्या होता है, कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी जैसे सन हो गया या फिर अगर हम मून्स की बात करें तो जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके आसपास भी लाइट्स की एक रिंग बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द hollow rings. Next is frequent changes of reading glasses. Patient feel headache, pain and redness of the eye. Next one is reduced vision in the dim illumination, especially during the night, and gradual increase in the side vision with the progression of glaucoma. जैसे जैसे ग्लूकोमा का प्रोग्रेशन होता जाएगा, पेशेंट का जो साइड विज़न है यानी कि जो पेरिफेरल विज़न है वो डिक्रीज होता जाएगा. इनवॉलेंट्री स्पास्म ऑफ आईलिड मसल, दैट इज़ कॉल्ड ब्लेफेरोस्पास्म. यहाँ पे एक पिक्चर्स मैंने डाला है, दिस इज़ द ब्लेफेरोस्पास्म. Another symptoms, for example, symptoms of open angle glaucomas are ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरीफेरल विजन, दैट इज साइड विजन. यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल विजन, दिस इज अर्ली ग्लूकोमा. नेक्स्ट वन इज एडवांस ग्लूकोमा एंड एक्सट्रीम ग्लूकोमा. एक्सट्रीम ग्लूकोमा में आप देख सकते हैं जो साइड के विजन है बिल्कुल ब्लैक हो गए, बस सेंटर का विजन जो है वो दिखाई दे रहा है. ट्यूनल विजन इन द एडवांस स्टेजेस. एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, signs and symptoms like nausea, vomiting, severe eye pain, visual disturbance often in low lights, blurred vision, hollows around the lights. मैंने अभी आपको hollows के बारे में बताया था. So this is the hollows around the lights. Next one is reddening of eye. Next clinical feature, that is increased cup to the disc ratio. So this is the healthy optic nerve and this is the optic nerve in the eye with glaucoma. Next is investigation. स्नेलन चार्ट. स्नेलन चार्ट के बारे में मैंने कल ही आपको बताया है ना, जो लास्ट टॉपिक मैंने कैटरेक्ट में बताया था, तो मैं फिर से उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी. सेम वही जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी रहेगा. पेशेंट का जो विजुअल फील्ड है हम उसको एग्जामिन करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप टू एग्जामिन द eye, measuring intraocular pressure with the help of tonometry and testing for the optic nerve damage with a dilated eye examination and imaging test. And in this we will use the mydriatics to dilate the eye, check for the area of vision loss by performing the visual field test, that is also called field test. Next one is measuring corneal thickness by the help of pachymetry. Next one is inspecting the drainage angle, that is performed by the goinoscopy.
एंड लास्ट वन इज पेरीमेट्री. पेरीमेट्री इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल फील्ड टेस्टिंग. इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो पेरिफेरल विजन है और जो सेंट्रल विजन है उसको हम एग्जामिन करते हैं बाय डिटरमाइनिंग द डिमिस्ड अमाउंट ऑफ द लाइट दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द वेरियस लोकेशन ऑफ विजन और बाय डिटरमाइनिंग सेंसिटिविटी टू टारगेट अदर देन लाइट एंड विजुअल एक्विटी मेजरमेंट टू डिटरमाइन इफ विजन इज बीइंग अफेक्टेड. सो दीज ऑल आर द इन्वेस्टिगेशन फॉर द ग्लूकोमा. नेक्स्ट वन इज medical management. So firstly we will give prostaglandins. These increase the outflow of the fluid in your eye. ये क्या करते हैं, जो ट्रेबिकुलर मैसवर्क से जो फ्लूइड का आउटफ्लो हो रहा था जो कि ब्लॉक हो गया था उसको ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं and thereby it reduce the intraocular pressure inside the eye. Medicine included prostaglandin, for example latanoprost, travoprost, tafluoprost, etc. Next one is beta blockers. These reduce the production of fluid in the eye and thereby lowering the pressure in the eye. ये क्या करते हैं, आइस के अंदर जो फ्लूइड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको डिक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है आई के अंदर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो कम हो जाता है. एग्जाम्पल टीमोलोल एंड बेटेक्सोलोल. नेक्स्ट वन इज अल्फा एड्रिनर्जिक agonist. These include the production of aqueous humor and increase the outflow of the fluid in the eye. ये जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, दे रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड इंक्रीज द फ्लो ऑफ फ्लूइड. ये एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, साथ ही साथ ये फ्लूइड के फ्लो को, आउटफ्लो को, बाहर जो जा रहा है वो फ्लूइड को क्या करते हैं, उसके जो ड्रेनेज को प्रमोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्राइमोनिडिन. नेक्स्ट वन इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स. दिस मेडिकेशन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इन द आई. ये मेडिकेशन भी फ्लूइड के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डोरजोलामाइड एंड एजॉप्ट. Next one is RHO kinase factor. These medication also lowering the eye pressure by suppressing the RHO enzyme which is responsible for the increased fluid production inside the eye and it is available for example natrasudil. Now last one is myotic और कोलिनर्जिक ड्रग्स. दीज इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द आई. तो ओवरऑल जितने भी जो ड्रग्स हैं उनका दो फंक्शन यहाँ पे, ये पहला फंक्शन क्या है, वो फ्लूइड के प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं. दूसरी चीज़ जो फ्लूइड का आउटफ्लो है जो ब्लॉक हो गया है, कम हो गया है, लिमिटेड है, उसको वो बढ़ा रहे हैं. एग्जाम्पल ऑफ मायोटिक दैट इज पिलोकार्पिन. नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट. सो फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट देयर इज trabeculectomy. This is the surgical procedure in which we remove the part of eye trabecular meshwork and the surrounding tissue which is obstructed or clogged. Next one is laser trabeculoplasty. So there is repairment. So it is an option for the open angle glaucoma and in this surgery we will use a small laser beam to open the clogged channel which block the trabecular meshwork and limited the drainage system. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्रेबिकुलोटॉमी. यहाँ ट्रेबिकुलेक्टॉमी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू चैनल्स क्रिएट किया गया है. एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी. यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेज़र बीम डालते हैं जिसकी वजह से जो भी क्लॉग्ड चैनल्स है जो ब्लॉक हो गए हैं वो वहाँ पे रिमूव हो सके. नेक्स्ट इज canaloplasty. It utilizes a micro catheter or tube placed in the canal of sclem, a channel in the eye that collect the aqueous humor and transfer it into the natural site of the drainage to enlarge the drainage canal, relieving the pressure inside the eye. ये क्या करता है, जो हमारा जो ड्रेनेज कैनाल है उसको क्या करता है, ये इसमें हम एक माइक्रो कैथेटर इंसर्ट करते हैं. यहाँ पे दो तरह के माइक्रो कैथेटर्स होते हैं, एक लार्ज पोर होता है और एक स्मॉल पोर वाला. वो क्या करता है, ड्रेनेज कैनाल को ये बड़ा करता है एंड रिलीविंग द प्रेशर इनसाइड द आई. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैनालोप्लास्टी. ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने एक माइक्रो कैथेटर डाला है जो कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उनको रिमूव करने का काम करता है. दिस इज़ द
large catheter and this is the small catheter. यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो कैथेटर जो प्लेस किया गया है, ये क्या करता है, फ्लूइड को ड्रेन करने का काम करता है. नेक्स्ट वन इज डीप स्क्लेरेक्टोमी, अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्क्लेरा एंड द एक्वस आउटफ्लो विच इज इनहेंस्ड बाय रिमूविंग द इनर वॉल. सो यहाँ पे डीप स्क्लेरोटॉमी में क्या होता है, स्क्लेरेक्टोमी में a surgical removal of sclera and the aqueous outflow which is enhanced by removing the inner wall of Schlemm canal and the structure which is responsible for the outflow and the trabecular meshwork is left intact to control the aqueous outflow. इसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्क्लेरा. इसमें हम स्क्लेरा जो है उसका सर्जिकल रिमूवल करते हैं, उसमें एक फ्लैप क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क है वो बिल्कुल रिमेन इंटैक्ट. का मतलब है हम उसमें किसी भी तरह का कट या इंसिजन क्रिएट नहीं करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्क्लेरा. यहाँ पे हमने एक फ्लैप बनाया है. फ्लैप बनाने के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चैनल्स क्रिएट करते हैं एंड इट इज़ इन्हेंस्ड बाय रिमूविंग द इनर वॉल ऑफ स्लेम कैनाल. और जिसकी वजह से क्या है, हमने यहाँ पे स्क्लेरा पे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक फ्लैप क्रिएट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पासिंग हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लूइड यहाँ से होके नीचे से फ्लैप के थ्रू ये ड्रेन होता है. सो दिस इज द इमेज ऑफ डीप स्क्लेरेक्टोमी. Next one is drainage implant or shunt. These are the open tubes which is implanted in the anterior chamber to shunt aqueous humor to an attached place in the conjunctival space. A fibrous capsule develop around the episcleral plate and filter the aqueous humor, thereby regulating the outflow and controlling the intraocular pressure. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्यूब प्लेस किया गया है. ये क्या करता है, प्रॉपर यहाँ पे ये ड्रेनेज का काम करता है. साथ ही साथ जो एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो है उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल द इंट्राओक्यूलर प्रेशर. नेक्स्ट वन इज डायोडाइड लेजर cycloablation. When trabeculectomy or glaucoma drainage tube has failed to control the glaucoma, then the treating physician may consider the ablation or destruction of the ciliary body which produce the aqueous fluid, because it involves permanent destruction of ciliary body and it is usually the last line of treatment for uncontrolled glaucoma. And before the advent of laser, this was done using a cryoprobe, that is the freezing probe to freeze the ciliary body, that is also called cyclocryotherapy. ये क्या है, लास्ट ऑप्शन है जब ग्लूकोमा ट्रीट नहीं हो पाता है आफ्टर द ट्रेबिकुलेक्टोमी और ग्लूकोमा ड्रेनेज जो ट्यूब, दोनों चीज़ें जो सर्जिकल जो ऑप्शन है हमारे पास परफॉर्म करने के बाद भी अगर ग्लूकोमा ट्रीट नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, साइक्लोक्रायोथेरेपी की मदद से हम क्या करते हैं, जो सिलियरी बॉडी है उसको होल क्या कर देते हैं, हम उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड इट इन्वॉल्व्स द परमानेंट डिस्ट्रक्शन. इसमें हम क्या करते हैं, उसको सिलियरी बॉडी को परमानेंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि एक्वस फ्लूइड का सिक्रीशन कर रही है. Nursing diagnosis, risk for injury related to visual field defect. Next nursing diagnosis, that is self care deficit related to visual acuity deficit. Acute pain related to pathophysiologic changes and surgical correction. Non-compliance related to inconvenience and side effect of glaucoma. एंड नॉलेज डेफिशिट रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन. मैंने इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट को मैंने बहुत अच्छे से डील नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि आप इसके पहले जो मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग मैनेजमेंट जो बताया है, जो अदर आई डिसीज़ में मैंने बताया, वो सभी ऑलमोस्ट सेम है. और यहाँ पे मैंने एक साइट डाल दिया है, तो आप लोग इस साइट पे जाके ग्लूकोमा के जो नर्सिंग केयर प्लान है वो देख सकते हैं. टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीटेड.